Subscribe and press the bell icon and never miss any update from Discuss with Derek. Nearly 10 lakh students apply for IIT JEE exam every year, and out of that only 10,000 students get selected in IIT. That is 1% of the total. Out of rest 99%, many gets disappointed, feels disheartened, lacks self-confidence, and many even get depressed and even commit suicide. But have we ever thought before starting preparing for IIT that why IIT? Hi, I am Derek, an undergrad student at IIT Roorkee, and welcoming you to Discuss with Derek. Hello and welcome to Discuss with Derek, and in this video we are going to discuss about why IIT, मतलब IIT जाना क्यों है. See, when we are in schools, what happens is we have a aim कि हम क्लास 1 में हैं, हमको क्लास 2 में जाना है. उसके लिए हमको कुछ सेट ऑफ एग्ज़ाम्स होते हैं क्लास में, वो हमको परफॉर्म करना है. उनमें अगर हम टॉप भी मार दें, वी आर वेरी हैप्पी. उन 40-50 बच्चों के बीच में हम कुछ अगर टॉप कर दें, देन वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड हमारे पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ इट. और वो हमको फिर फर्दर अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ के लिए, एंड देन दे से कि यार इसको IIT में भेजो. पर उससे पहले फेज़ आता है जब आप क्लास 10th में होते हैं, एंड देन दे से कि बेटा एक बार 10वीं कर लो, और फिर मज़े ही मज़े. फिर जब आप 10th में अच्छा करते हैं एंड यू गेट अ रिवॉर्ड फॉर इट, समटाइम्स यू गेट अ मोबाइल फ़ोन या स्कूटी या समथिंग लाइक दैट, बाइक. फिर आप जब 10th क्लियर करते हैं, देन यू गेट दिस फ्रॉम योर पेरेंट्स और रिलेटिव्स कि बेटा एक बार 12वीं कर लो अच्छे से, फिर तो मज़े ही मज़े. फिर आप 11th-12th अपने आप को रगड़ते हैं, 11th-12th प्रिपेयर करते हैं, 12th में अच्छा स्कोर करते हैं, यू गेट अ रिवॉर्ड समटाइम्स, ठीक है, लैपटॉप मिल जाता है अच्छा खासा या, ठीक है. देन आफ्टर योर 12th इज़ डन, दे से बेटा एक बार IIT निकाल लो. एक बार IIT में पहुंच गए, फिर तो मज़े ही मज़े. सो इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस चेन, आई नो मोस्ट ऑफ अस हैव बीन थ्रू दिस स्टेज. If you are following this, then this is not your own decision. This is being imposed on you. People have their opinions. People say this by their own experiences, and they say कि एक बार 10वीं कर लो, 12वीं कर लो, then IIT कर लो. If you are following this, then there is some lacking in you. Or I think if getting into IIT is not your own personal decision, then it would be very, very difficult and very challenging for you to get into IIT. So in this video, what we are going to do is I am going to show you the real picture. See, many YouTubers and wherever you will find everywhere you will find good points of IIT. Like IIT में जाओगे, पैकेजेस अच्छे मिलेंगे, कैंपस लाइफ ये है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ है, सैलरी ये वो, सो ये सब आपको अच्छी बातें ही मिलेंगी. बट in this video I am going to share you the true picture. I'll share with you the good points as well as the pain points, and at last we will conclude why IIT. So now let's discuss some good points of IIT. See, firstly is that self-confidence. जब आप IIT का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, which is one of the toughest exam, और अगर आप IIT में पढ़ रहे हैं, then you are ahead of others and you have that confidence in yourself. इसलिए आप जब कुछ भी परफॉर्म करते हैं लाइफ में आगे, then you have that thing कि यार I have cleared this toughest exam, तो this would be easier for me. You have that confidence in yourself. Second point is social value. See, if you clear this exam and if you are studying in IIT, then automatically people will start appreciating your efforts. Mostly they will start recognizing you. ठीक है, earlier maybe हो सकता था they don't involve you in most of the things, but अगर आप IIT में हैं, they start appreciating you, they start recognizing you, और फिर अपने किसी known लोगों को फिर आपके पास भेजते हैं for your advice and all those things. Thirdly is high-tech education. See, IITs are premier institutes of our country. So वहाँ पे जो education का level है, that is very, very far ahead from other colleges in our country. ठीक है, तो ये आपको एक एडवांटेज मिलती है. जब आप उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो, तो आपको तभी नॉलेज मिल जाती है कि ये एग्ज़ाम आपसे मांग ही कुछ और रहा है. ठीक है, बाकी एग्ज़ाम्स कंपेरेटिवली देखोगे तो ईजियर पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू IIT JEE. तो IIT JEE जब आपसे प्रॉब्लम्स ही इस तरह से पूछ रहा है, तो वहाँ का जो स्टैंडर्ड है स्टडीज़ का, दैट इज़ अगेन वेरी हाई. नेक्स्ट पॉइंट इज सैलरी पैकेजेस. यू मस्ट हैव हर्ड दैट कि IITs में 1 करोड़ का पैकेज लग रहा है, ठीक है, 1.5 करोड़ का पैकेज लग रहा है.
तो येस, इट इज़ ट्रू, इट हैपन्स, बट कुछ फॉरेन कंपनीज़ में होता है ऐसा। डोमेस्टिक पैकेजेस इतने ज़्यादा नहीं लगते, बट स्टिल 60-80 लाख्स डोमेस्टिक पैकेजेस भी लगते हैं आईआईटी में। सो हाँ, सैलरी पैकेजेस के बारे में बात करें तो येस, सैलरी वाइज, जॉब सिक्योरिटी वाइज इट इज़ गुड, ठीक है। यू गेट अ डिसेंट पैकेज एट अ अर्ली स्टेज ऑफ योर लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट इज कैंपस लाइफ। See, if you talk of campus life, you have got friends from all over the country, ठीक है। all over the bright brains from all over the country get into IIT और फिर उन लोगों के साथ interact करते हो, that is very good. Then a good infrastructure, good facilities, वहाँ पे clubs होते हैं बहुत सारे, you get programming clubs, you get music, dance, cultural activities, dramatic, stand up, ठीक है, culinary clubs, एंड यू कैन इवन बिकम अ रेडियो जॉकी। सो बहुत सारी चीज़ें आपको परफॉर्म करने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है, बहुत सारे फेस्ट होते हैं, ठीक है, आईआईटीज़ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि वहाँ की कैंपस लाइफ बहुत अच्छी होती है बाकी कॉलेजेस के हिसाब से। Next up is alumni connection. See, though the students who have passed out from IIT and they are successful in life and they are doing good in life, so you get to interact with those students, ठीक है, जो कि आज की डेट में they are performing very well, तो उनके साथ आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। दैट इज़ अ गुड पॉइंट ऑफ IIT कि आप उनके साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। देयर आर सम चैनल्स थ्रू विच यू गेट टू इंटरेक्ट विद दोज। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉरेन स्टडी। सी, अगर आप इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए फॉरेन स्टडी करना फिर भी कंपैरेटिवली ईजियर पड़ेगा, क्योंकि बाहर के कॉलेजेस, फॉरेन में अगर आप कॉलेजेस देखें तो अगर आपके पास एक अच्छा खासा ब्रांड नेम है, इफ़ यू हैव अ ब्रांड नेम ऑफ यू आर हैव अ टैग ऑफ IITian, then it would be easier for you to avail foreign study. And next point is research opportunities. See, IITs में आप जब पढ़ रहे होते हैं, you are doing your bachelor's, at the same time somebody is doing their postgraduate MTech कर रहे होते हैं लोग, then somebody is doing PhD, तो आपको वहाँ पे research opportunities बहुत मिलती हैं, ठीक है। You get opportunities to interact with the masters as well as PhD fellows, और उनके साथ आप interact करते हैं, या even professors involve you in some, if you are interested, if you are willing to do that, if you are studying hardly for it, they give you opportunity to perform some research work. Now let's talk of some pain points, ठीक है। This is a very important segment of this video because you won't find it anywhere else, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस बारे में बात करें, अच्छी अच्छी बातें सबके सब बोल देंगे, इट इज़ ईजियर फॉर एवरीवन टू से एंड अप्रिशिएट अबाउट IIT, बट जो रियल पिक्चर है, द अदर साइड ऑफ द कॉइन, वेरी फ्यू शोज दैट, एंड आई एम गोइंग टू टॉक ऑफ दैट ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पेन पॉइंट। सो फर्स्टली इज द प्रोग्राम स्ट्रक्चर। आप IITs आएंगे, यू हैव टू इनरोल फॉर अ प्रोग्राम एंड दैट इज़ इंजीनियरिंग। आप सारी कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ जो भी मैंने आपको गुड पॉइंट्स में मेंशन करी हैं, यू कैन अवेल दैट, बट फॉर दैट यू हैव टू इनरोल इन अ प्रोग्राम कॉल्ड इंजीनियरिंग, ठीक है। एंड इंजीनियरिंग इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, इट इज़ रियली रियली वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो इंजीनियरिंग, आई पर्सनली सजेस्ट दैट इंजीनियरिंग उसी को करनी चाहिए जिसका उसमें इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट जानने के लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा इंजीनियरिंग होती क्या है। सी, इफ़ यू आर गुड एट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और आप कंप्यूटर साइंस में थोड़ा बहुत जानते हैं, दैट डजंट मीन कि यू कैन बी अ गुड इंजीनियर, ठीक है। ये पहले सबसे पहला मिथ है कि पीपल से कि यार हमारा बच्चा फिजिक्स बहुत अच्छा करता है, इसको मैकेनिकल कराओ, ठीक है, या ये मैथ्स में बहुत अच्छा है तो ये कंप्यूटर साइंस अच्छी कर सकता है, ठीक है, मैथमेटिकल कंप्यूटिंग अच्छी कर सकता है। तो ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है, ठीक है। आप जब इंजीनियरिंग करते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, वो बहुत बियॉन्ड है आपकी स्कूल स्टडीज़ से। तो पहले तो ये मिथ को हम क्लियर करना है, फिर पहले हमको ये जानना है कि इंजीनियरिंग होती क्या है, ठीक है। और उसके लिए आई विल मेक श्योर कि मैं आगे फ्यूचर में एक वीडियो बनाऊँ। तो पर इंजीनियरिंग के बारे में यू कैन गूगल इट आउट, आप बहुत सारे मीम्स भी देखते होंगे इंजीनियरिंग के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि इंजीनियरिंग उसी को करनी चाहिए जिसका इसमें इंटरेस्ट है, अदरवाइज इट विल बी वेरी पेनफुल फॉर यू टू स्टडी दैट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आप वहाँ पे अपने 4 या 5 साल बिताएंगे एंड यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, और अगर आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपका किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आपको टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो कंपैरेटिवली आप इजीली निकल जाओगे उस सब चीज़ों से और उसको संभाल लोगे, एंड यू कैन मैनेज दैट एज वेल एज यू कैन डू अदर थिंग्स। जो भी हमने गुड पॉइंट्स में मेंशन किया, तो वो सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं IITs की, वरना फ़ायदा क्या है फिर IIT में। जो गुड पॉइंट्स होंगे वो किसी काम नहीं आएंगे अगर आपने ये चीज़ को मैनेज करना नहीं सीखा। तो दिस इज़
द थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड कि आप वहाँ पे मैक्सिमम टाइम, सपोजिंगली अगर आप दिन के 24 घंटे हैं तो दिन के 24 घंटे में से आप 12 घंटे मान के चलो, 10 से 12 घंटे आप अपना स्ट्रक्चर जो भी आपका प्रोग्राम है उसी पे ही फोकस्ड रहोगे ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। नॉट एवरी डे बट या मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ द वीक दिस हैपन्स कि आप अपने ही प्रोग्राम में इन्वॉल्व रहोगे। उसके बियॉन्ड करने के लिए यू हैव टू मैनेज योर टाइम। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। Secondly is tough academic structure. Like I said, see, academics of IIT is not going to be easy. जैसा आपने एग्ज़ाम दिया है, kind of you can expect कि IITs में पढ़ाई कैसी होती होगी, तो उसको मैनेज करना भी इतना आसान नहीं होता, ठीक है। आपके रेगुलरली कुछ ना कुछ असेसमेंट्स होती रहती है, कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स आपको मिलते रहते हैं। अगर आपको मैं जनरल ओवरव्यू दूँ तो 4 से 5 महीने का एक सेमेस्टर होता है आपका, ठीक है। उसमें से शुरू का 1 महीना आप थोड़ा सा पढ़ते हैं, देन विद इन आफ्टर 1 मंथ आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं, एंड मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद 1 महीना अगर पढ़ते हैं फिर देन आपके एंड टर्म एग्ज़ाम होता है। तो इसी के आसपास अप्रॉक्सीमेटली चलता है, एंड इन बिटवीन देयर आर लॉट ऑफ असाइनमेंट्स, ठीक है। बहुत सारे आपको असाइनमेंट्स मिलते ही रहेंगे। सो एकेडमिक लेवल पे देखेंगे तो बहुत टफ पड़ सकता है आपको, इफ़ अगेन ऐसे इफ़ यू आर नॉट वेरी मच डीपली इनटू इट, इफ़ यू आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग। थर्डली इज़ दैट लॉट ऑफ असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट वर्क्स, ठीक है। आपका अपने पूरे सेमेस्टर में अगर आप देखें पूरा ईयर तो 12 मंथ्स का ईयर होता है, जिसमें से 10 मंथ्स अगर आप माने 9 to 10 मंथ्स आप अपना सेमेस्टर ही बिता रहे होते हैं, ठीक है। 2 सेमेस्टर होते हैं, आप 9 से 10 मंथ्स के आपके 2 सेमेस्टर्स बीतते हैं। तो आप मोस्टली इन सब चीज़ों में ही इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। यू हैव टू कैरी आउट सो मेनी असाइनमेंट्स। आप देखेंगे बहुत सारे आपको, अगर इफ़ यू फॉलो some engineering students and engineering channels, so you will get to know कि बहुत टफ पड़ सकता है, ठीक है। there are so many assignments, there are so many project works that you have to do and that is within a deadline, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सा प्रेशर में डाल सकता है। नेक्स्ट इज 75% अटेंडेंस रूल। ये ज़्यादातर आपको कॉलेज में मिलेगा इंडिया के, बट आईआईटी में येस इट इज़ स्ट्रिक्टली फॉलोड। आपको कुछ 1-2 प्रोफेसर मिल जाएंगे जो थोड़ा सा लीनियंट हो सकते हैं, बट मैक्सिमम प्रोफेसर्स आर लाइक यू हैव टू अटेंड मैक्सिमम क्लासेस एंड एटलीस्ट हैव 75% अटेंडेंस, ठीक है। तो अगर आपको एक जस्ट ओवरव्यू दूँ कि अगर सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट की 10 क्लासेस हैं तो आपको 7.5 यानी कि 8 क्लासेस तो आपको आना ही पड़ेगा। दैट मीन्स आप यू कैन स्किप जस्ट 2 क्लासेस, और 2 क्लासेस तो यार ऐसे ही कभी कभी मिस हो सकती है, ठीक है। सपोजिंगली आप लेट उठे हो, या सपोजिंगली आप किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो, या सपोजिंगली आपकी तबीयत ख़राब है, तो 2 क्लासेस तो ऐसे ही मिस हो सकती है। तो आपको फिर वहाँ पे काफ़ी मतलब जो स्ट्रक्चर है तो आपको काफ़ी कुछ झेलना पड़ सकता है। मे बी सपोजिंगली द एक्सट्रीम केसेस कि आपको सब्जेक्ट में बैक लग सकती है, ठीक है। तो ये आपको उसमें मैनेज करना आना चाहिए, ये एक पेन पॉइंट कह सकते हैं। नेक्स्ट अप इज़ हाई लेवल कंपटीशन। सी IITs में जब आप एग्ज़ाम देते हैं यू नो कि आपका कंपटीशन किन लोगों के साथ है ना, और उसमें से जो छट के आते हैं, ठीक है, शुरू के जो मैंने आपको 10,000 बताए, दे गेट इनटू IIT और नाउ यू हैव टू कम्पीट विद देम फॉर द योर प्रोग्राम, ठीक है। आपके 4-5 साल का जो प्रोग्राम है वही लोग हैं और दे आर रियली द बेस्ट, ठीक है। दे आर द रियली ब्राइट ब्रेन्स ऑफ आवर कंट्री, और उनके साथ कंपटीशन इज़ अनदर लेवल, ठीक है। तो उनके साथ compete करना, आई एम नॉट सेइंग कि फ्रेंड्स नहीं है, ये नहीं है, सब कुछ है, बट हाँ दे हैव गॉट द सिमिलर काइंड ऑफ ब्रेन्स, ठीक है। तो आपको हाई लेवल कंपटीशन मिलेगा, आप किसी भी चीज़ में हो वहाँ पे, चाहे आपका प्रोग्राम स्ट्रक्चर हो, चाहे आपका क्लब्स हो, चाहे आप रिसर्च के लिए जाना चाह रहे हो, चाहे आप प्लेसमेंट के लिए बात करें, तो हर जगह आपको वहाँ पे कंपटीशन हाई मिलेगा। तो दिस इज़ अगेन यू कैन से अ ग्रोथ पॉइंट एज वेल, बट या यू कैन कंसिडर इट एज अ पेन पॉइंट। So now we have discussed some good points as well as some pain points, ठीक है। अभी तक you must have heard only of good points everywhere around yourself, ठीक है, but through this video my main motive was to share some pain points as well, ठीक है। So if you are thinking for getting into IITs you have to consider these points as well, क्योंकि ऐसा जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बाद में मज़े ही मज़े हैं, या इट इज़, ठीक है, बट आपको उसको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द फन इन दैट, यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू एक्सप्लोर योर सेल्फ कि आपको क्या चीज़ें वहाँ पे सूट कर रही हैं, और कुछ चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली
थोड़ा सा डिप्रेस करेंगी, ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर में डालेंगी, ठीक है. एंड दैट इज़ व्हाट IIT JEE एग्ज़ाम आस्क यू फॉर. They kind of prepare you. They expect only those students who can deal with all these things. ठीक है, जो क्योंकि आपका जो 1 साल 2 साल प्रिपेयर करते हैं आप IIT का एग्ज़ाम निकालने के लिए, अगर इतना इजी होता तो कोई भी निकाल लेता, ठीक है. 1-2 साल आपको लगते ही हैं, तो आप उस 1-2 साल में अपने आप को कैसा मैनेज कर रहे हो, ठीक है. एंड देन यू एंड अप इन सिक्योरिंग अ सीट इन IIT. So they expect you that you must have gone through that phase and you have managed it well, तभी आप IIT में आए. So at last, if we conclude this thing, first of all, before with that, I just want you all guys to share this video as much as possible, because I just want कि जो भी IIT JEE की प्रिपरेशन करने वाला है शुरू अभी, ठीक है, या कर चुका है, जस्ट दे गेट टू नो कि यार उनको पता होना चाहिए कि वाई दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, ठीक है. ऐसे नहीं कि भेड़ चाल में कुछ भी कोई भी कुछ बोले या कोई भी कुछ करे. दे हैव टू स्टिक टू अ डिसीजन दैट इज़ टेकन बाय देमसेल्व्स, ठीक है. उनको पता होना चाहिए कि IIT में है क्या, ठीक है, सिर्फ 2-4 बातें सुन के नहीं, अच्छे से, ठीक है. एंड थ्रू दिस वीडियो आई गेस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी, एंड फर्दर दे हैव टू फाइंड इट बाय देमसेल्व्स, ठीक है. उनको खुद ढूंढना पड़ेगा, खुद जानना पड़ेगा कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, एंड व्हाट इज़ द आफ्टर लाइफ ऑफ दैट, और ये जानने की कोशिश आपको करनी चाहिए. सो आई जस्ट फील कि शेयर दिस वीडियो एज मच पॉसिबल सो दैट इट रीचेस ऑल ऑफ द JEE एस्पिरेंट्स जितने तक पहुंच सके, ठीक है. एंड लेट्स कंक्लूड दैट विद दिस थॉट, लाइक फर्स्टली इज़ दैट यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन, ठीक है. आप किसी के ओपिनियन, किसी के थॉट्स के बेसिस पे अपने आगे आने वाली लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकते. You have to take your own decision, because I see students after if they are not selected, they say that मेरा तो मन ही नहीं था, ठीक है, I was being forced by my parents कि IIT की तैयारी कर लो, ये कर लो. तो you are not justifying your life, ठीक है. आप किसी और के कहने पे अपना 1-2 साल लगा रहे हैं, and then you end up not getting into it, and then you are blaming somebody else. तो आप ये पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि why IIT. So let's conclude this with the same thought that each individual is unique and you have to find your own set of reasons. You have to jot down in a paper the reasons why you want to get into IIT. So let's conclude this with the same thing, that why IIT. If you find this video useful, then do like and share. And don't forget to subscribe and press the bell icon to get notification of upcoming videos.